વલસાડ જિલ્લાની ઉમરગામ પોલીસે મહારાષ્ટ્રમાંથી મોબાઈલ અને ઘરફોડ ચોરીઓ કરતા 4 લોકોને પકડી પાડવામાં સફળતા મળી છે. ઉમરગામ તાલુકામાં હાલ જ બનેલી એક ઘરફોડ ચોરી બાદ તપાસનો ઘમઘમાટ શરૂ થયો હતો. જિલ્લા પોલીસ વડાના માર્ગદર્શન હેઠળ ઉમરગામ પોલીસે વિવિધ પાસાઓ અને સીસીટીવી સર્વેલન્સ ટેકનોલોજીથી મહારાષ્ટ્રના મુંબઈ અને આસપાસના વિસ્તારોમાંથી 4 લોકોને પકડી પાડ્યા છે. આ તમામ આરોપીઓ મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં ઘરફોડ ચોરીના કેસોમાં ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતા હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ 4 લોકો પાસેથી રોકડ અને 16 મોબાઈલ રિકવર કરવામાં આવ્યા હોય હજી પણ ઘરફોડ ચોરીના ભેદ ખુલી શકે છે. વલસાડ જિલ્લા એસીબીનો સપાટો. વાપીની સીજીએસટી ઓફિસમાં એકાઉન્ટન્ટો લાંચ લેતા ઝડપાયા. સીજીએસટી એન્ડ સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝની કચેરીમાં જ એસીબીનું લાંચના છટકાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આરોપી કપિલ નટવરલાલ જૈન, આસિસ્ટન્ટ એકાઉન્ટન્ટ ઓફિસર અને રવિશંકર શ્યામકાંત ઝા, સિનિયર એકાઉન્ટ લાંચ લેતા ઝડપાયા. ફરિયાદીએ સીજીએસટી ઓફિસમાં ફૂલછોડના કુંડા આપ્યા હતા. આ ફૂલછોડના કુંડાઓનું બિલ પાસ કરવા લાંચિયા એકાઉન્ટન્ટોએ માંગી હતી લાંચ. આરોપીની કેબિનમાં જ એસીબીએ લાંચ લેતા રંગે હાથ ઝડપ્યા. પેટ્રોલ પંપ નજીક ભડકે બળી કાર. દાદરાનગર હવેલીના સેલવાસના નરોલીની ઘટના. પેટ્રોલ પંપ નજીક કારમાં આગ લાગી. આગ લાગતા દોડધામ મચી જવા પામી. આ ઘટનામાં કોઈ ઈજા કે જાનહાનિ નહીં થઈ, પરંતુ આગ લાગવાનું કારણ હજુ પણ જાણી શકાયું નથી. શીખોના ગુરુ ટેગ બહાદુર સિંઘની શહીદીના 350 વર્ષ પૂર્ણ થતાં આસામથી નીકળેલી જાગૃતિ યાત્રા વાપી ગુરુદ્વારા પહોંચતા પંજાબી એસોસિએશન દ્વારા ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. ગુરુદેવ ટેગ બહાદુર સાહેબ શહીદીને 350 વર્ષ તારીખ 24 નવેમ્બરના રોજ પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે, જેના ઉપલક્ષમાં એક વિશાળ જાગૃતિ યાત્રા આસામથી નીકળી પંજાબ જઈ રહી છે. શિરોમણી ગુરુદ્વારા પ્રબંધક કમિટી છેલ્લા 40 દિવસ ઉપરાંતથી સમગ્ર ભારતના 12 રાજ્યોમાં ફરીને આજે વાપી ચણોદ ખાતે આવેલા ગુરુદ્વારા ખાતે પહોંચતા આજે વાપી પંજાબી સમિતિ દ્વારા તેનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આ યાત્રામાં ગુરુ તેગ બહાદુરના અસ્ત્રો શસ્ત્રો સહિત નીકળેલી યાત્રામાં માથું ટેકવવા માટે દમણ, સેલવાસ, ઉમરગામ સહિત અનેક સ્થળેથી પંજાબી સમાજના લોકો ઉમટી પડ્યા હતા. કહેવાય છે કે ગુરુ તેગ બહાદુર સિંઘ દ્વારા તેમના 3 સાથીદારો સાથે ધર્મની રક્ષા માટે શહીદી વહોરી હતી. તેમની યાદમાં નીકળેલી જાગૃતિ યાત્રા વાપી પહોંચી હતી. ગુરુદેવ તેગ બહાદુર સાહેબની શહીદીને 350 વર્ષ આજે પૂર્ણ થયા છે. જ્યારે કાશ્મીરના પંડિત કૃપરામને ઔરંગઝેબના સુબેદારે કહ્યું કે તમે બધા મુસલમાન બની જાઓ, ત્યારે અનેક જગ્યા ઉપર ફર્યા છતાં તેમનું કોઈ સમાધાન ન થતાં તેઓ શીખોના ગુરુ તેગ બહાદુર સાહેબ પાસે જઈ પોતાની સમસ્યા વર્ણવી હતી. ત્યારે કૃપારામે ઔરંગઝેબ સામે એક પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે કે જો તમે શીખોના ગુરુ તેગ બહાદુર સાહેબને મુસલમાન બનાવી લેશો તો અમે પણ મુસ્લિમ ધર્મ અંગીકાર કરીશું. ત્યારે ઔરંગઝેબે શીખોના ગુરુ તેગ બહાદુરને બોલાવ્યા હતા. તેમને અનેક લાલચ આપી પણ તેઓ ડગ્યા નહીં. એટલું જ નહીં, તેમની સાથે 3 શીખો આવ્યા હતા: ભાઈ મતીદાસ, ભાઈ સતીદાસ, ભાઈ જ્વાલા. એકને કરવત વડે 2 ટુકડા કરી નાખ્યા છે, એકને જલતી ગુણીમાં લપેટી દીધા છે અને એકને ઉકળતા પાણીમાં બેસાડી દીધા. ઔરંગઝેબને હતો તેઓ સમગ્ર બાબત જોઈને ડરી જશે, પરંતુ તેગ બહાદુર કોઈ પણ ડર વગર ધર્મ પરિવર્તન કર્યું નહીં. તેમને ધર્મ પરિવર્તન થવા પણ નહીં દઈશ જણાવતા ગુસ્સે થઈને ઔરંગઝેબે તેમની કત્લ કરાવી દીધું હતું.
ત્યારે તેમની શહીદીના કારણે અનેક શીખો આજે પણ ધર્મ પરિવર્તનથી બચી શક્યા છે. અનેક લોકો આજે પણ હિન્દુ ધર્મ જાળવી રાખ્યું છે. આજે નાસિકથી વાપીના ચણોદ ગુરુદ્વારા ખાતે આવી પહોંચેલી વિશાળ જાગૃતિ યાત્રાનો કાફલોને ફૂલોથી વધાવી લઈ માથું ટેકવવા માટે પંજાબી સમાજના અગ્રણીઓ સહિત અનેક લોકોએ હાજરી આપી હતી. વાપી પંજાબી સમાજના ચેરમેન એસએસના પ્રમુખ ચરણ કમલસિંહ, સેક્રેટરી રવિન્દ્રસિંહ, જોઈન્ટ સેક્રેટરી પ્રિન્સ મારવા, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ મનદીપસિંહ દ્વારા સમગ્ર કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે વિશેષ કામગીરી કરાઈ હતી. આ વિશાળ નગર કીર્તન યાત્રા ચનોદથી સુરત જવા માટે રવાના થઈ હતી. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी के नवम स्वरूप धन्य धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की अद्वितीय कुर्बानी। तिलक जन्यू राखा प्रभ ताका कीनो बडो कलू महसाका। साधन हेत इति जिन करी शीस दिया पर सी न उचरी। धर्म हेत साका जिन किया शीस दिया पर सिर न दिया। धर्म की रक्षा के लिए, इंसानियत की रक्षा के लिए, जुल्म के खात्मे के लिए, मुग़ल शासक और औरंगज़ेब के द्वारा किए जा रहे जुल्मों को रोकने के लिए धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने आपने 3 गुरसिखों के समेत जो अद्वितीय शहादत दी और धर्म की ध्वजा को सदा फहराया, धर्म की नींव रख ली। धन श्री गुरु तेग बहादुर जी का वो शहीदी दिहाड़ा इस साल 24 नवंबर को 350 साल संपूर्ण हो रहे हैं। इस 350 साला शहीदी दिवस के अवसर पर सिख पंथ की प्रतिनिधि संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से समूचे हिंदुस्तान भर में श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत के लिए बताने के लिए, गुरु की शिक्षा का प्रचार करने के लिए आसाम में से गुरुद्वारा धोबड़ी साहब जहाँ पर सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी गए थे, वहाँ थे विशाल नगर कीर्तन जुलूस आरंभ हुआ था और हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों में, शहरों कस्बों में होते हुए आप जहां वापी में पहुंचे। वापी की समुच्ची सिख संगत ने और भी भाईचारों ने बड़े प्रेम, सत्कार और श्रद्धा के साथ नगर कीर्तन का स्वागत किया है। और अब जहां से ये नगर कीर्तन अगले पड़ाव के लिए सूरत जाने के लिए रवाना हो रहा है। सो हम सभी को चाहिए कि जो संदेश सतगुरु तेग बहादुर जी ने हमें अपनी वाणी में बख्शिश किया, जो उपदेश दिया, हम उस उपदेश को अपने हृदय में बसाएं और गुरु की शिक्षा पर चल के अपने जीवन को सफला करें। जहां गुरुद्वारा साहिब की प्रबंधक कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद है, उसे हर प्रांत की सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से भी बहुत अच्छा सहयोग इस नगर कीर्तन को दिया जा रहा है। मैं सभी का श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से, सारे प्रबंध की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम वापी शहर में जब आए और संगत का इतना प्यार उत्साह देख करके मन में इतनी खुशी हुई कि संगत जो है अपने धर्मों के ऊपर होकर के भी धन गुरु ग्रंथ साहब को अपना शीश झुका रहे हैं। और ये महान नगर कीर्तन जो शाम की धरती से चला था, आज यहाँ गुजरात की धरती में पहुँचा है। तभी ये नगर कीर्तन निकालने का मकसद ये है कि धन साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब नामे गुरु, उनकी शहादत आज से 350 साल पहले हुई और उनके साथ 3 गुरसिख, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, किसी को आरे से चीरा गया, किसी को रूह में बांधकर साड़ा गया और किसी को देग में पानी में उबाला गया। और सबका एक ही जवाब था उस समय जलाद को, हमारा मुख जो है हमारे गुरु की तरफ होना चाहिए, हमारी पीठ नहीं होनी चाहिए। गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना बलिदान इसलिए दिया कि पंडित कृपा राम जी जो कश्मीर में रहने वाले थे, जब उन्होंने फरियाद की कि हमारा धर्म खतरे में है, मुसलमान हुकूमत हमें जबरी हमारे जनेऊ उतारना चाहती है, हमारा तिलक मिटाना चाहती है, तभी 9 साल की व्यवस्था थी गोविंद राय जी की, जो अभी हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी बने। तब जब उन्होंने फरियादियों का चेहरा तका तो अपने पिताजी को बोले, आपसे धर्मी मनुख दुनिया में मुझे कोई दिखता नहीं,
तभी आप अगर इनके लिए कुर्बानी दे के शहीद हो तो मैं यतीम होना प्रवान कर सकता हूँ। तभी गुरु तेग बहादुर साहब खुद चल करके औरंगजेब के पास गए और हिंदू धर्म का पर्दा ढकने के लिए, जनेऊ बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। ऐसा बलिदान दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। जिस गुरु का शरीर का संस्कार तो दिल्ली में हो रहा है और शीश का संस्कार जो है वो आनंदपुर साहब की धरती में हो रहा है। ऐसे महान तेग बहादुर साहब गुरु को, उनकी शहादत को प्रणाम करने के लिए बहुत सी जनता सड़कों पे आके गुरु को नमस्कार कर रही है। मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से प्रधान सरदार हरजिंदर सिंह धामी जी की तरफ से यहाँ की समुची संगतों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज जो रैली आई हुई है, जो कीर्तन नगर यात्रा हो रही है, ये इसका क्या हेतु है और कहाँ से निकली है, कितने दिन हुए? ये मैं सविंदर सिंह सरना, चेयरमैन वापी पंजाबी धर्मन सिलवास पंजाबी एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में आज हमने स्वागत किया है। ये 350 साल पूरे हुए हैं गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी को। उन्होंने कहा था, बाहें जिन्हां दी पकड़ी है, सिर दीजे बाह न छोड़िए। जब कश्मीर के पंडित कृपा राम को वहाँ के सूबेदार ने कहा कि आप सब मुसलमान बन जाओ, तो उनके पास कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने सब जगह गए तो किसी ने बताया कि सिखों के ग्रुप पंजाब में रहते हैं, आप उनके पास जाओ, आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। तो वो गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास कृपा राम और कश्मीर के सभी पंडित आए। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि आप औरंगजेब को बोल दो कि अगर आप सिखों के गुरु को मुसलमान बना लेते हैं तो हम सब मुसलमान बन जाएंगे। तो औरंगजेब तो बहुत खुश हो गया था और उसने फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी को वहाँ पर बुलाया और बहुत लालच दिए, सब चीज़ किए। उनके सामने उनके साथ जो 3 सिख आए थे उनको भी, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई ज्वाला को, इनको एक को आरे के साथ चीर दिया, दूसरे को रुई से लपेट के जला दिया, तीसरे को जलते हुए पानी में बिठा दिया। उन्होंने सोचा ये सब देख के गुरु तेग बहादुर साहब डर जाएंगे, पर वो डरे नहीं और उन्होंने कहा मैं किसी भी तरीके से धर्म परिवर्तन नहीं करूँगा और ये धर्म परिवर्तन होने भी नहीं दूंगा। और इस पर औरंगजेब ने गुस्से में आकर उन्हें कत्ल करवा दिया था। और उसके बाद उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी, जो हमारे 10th गुरु, उनके बेटे गद्दी पर बैठे थे। तो इनकी जो शहादत है, आज सब कहते हैं कि अगर ये शहादत ना दी जाती तो पता नहीं आज हम में से सब कितने मुसलमान बन चुके होते थे। उन्हीं को हम आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिनकी वजह से हम सर ऊपर उठाकर एक हिंदू के रूप में, एक सिख के रूप में हम इस देश में बस रहे हैं। धन्यवाद। एक मिनट। ये गुरु तेग बहादुर साहब शहीदी यात्रा जो है वो आसाम से निकली है और आसाम से लगभग 12 स्टेट से होती हुई इस समय ये गुजरात पहुंची है। यहाँ से ये सूरत जाएगी, सूरत से अहमदाबाद होते हुए राजस्थान से होके ये पंजाब में आनंदपुर साहिब जाके इसकी समाप्ति होगी 24 नवंबर 2025 को। स्वागत किया गया। वापी की गुरुद्वारा संगत आपने देखा ही थी, बड़े जोर शोर के साथ फूलों की वर्षा करते हुए। इनके साथ हमारे दरबार साहिब के हेड ग्रंथी हैं परविंदर पाल जी, वो भी साथ में आ रहे हैं। श्रोमणी प्रबंधक कमेटी मेंबर्स भी साथ में आए हुए हैं और लगभग 100 संगत इनके साथ पूरे साथ साथ चल रही है। अब हम सारे गाड़ियों के साथ इनके साथ इन्हें विदाई देने के लिए वलसाड़ तक जाएंगे। आज हम सब सिलवासा, हाँ, मैं पिंकी खिमनानी सिलवासा से हूँ और सिलवासा, वापी, दमन तीनों संगत आज यहाँ मिलकर गुरु नानक वापी दरबार में SGPC की जो यात्रा आसाम से पंजाब तक आ रही है, गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी के 350 साल होने के उपलक्ष्य में उसका स्वागत करने के लिए आई है। मैं एक ही वाक्य में बोलूँगी कि आज हर हिंदू जनेऊ डाल सकता है, पूजा कर सकता है, तिलक लगा सकता है। तो ये उन्हीं गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी की बदौलत और मानव अधिकार की जो पहली श्रृंखला है शहादत की, वो उन्होंने शुरू की। आज के ज़माने में हमारे पास फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उस समय नहीं था। आज पता नहीं हम में से कितने लोग दूसरे धर्म के होते अगर गुरु तेग बहादुर जी ने अपना सर
कुर्बानी के लिए दिया नहीं होता। तो हर सनातनी, हर हिंदू, हर सिख का कर्तव्य है कि उनकी शहादत को याद करें और आने वाली पीढ़ी को भी ये संदेश दें। नमस्कार, मैं प्रिंस मारवा, जॉइंट सेक्रेटरी वापी पंजाबी एसोसिएशन। मैं सभी हिंदू धर्म के भाइयों को, अन्य भाइयों को सिर्फ एक संदेश देना चाहूँगा। ये जो शोभा यात्रा निकली है, ये हमारे जो 9वें गुरु है श्री गुरु तेग बहादुर जी, उनकी शहीदी जो हुई थी, उनकी शहीदी पूरब बनाई जा रही है। तो ये एक अवेयरनेस है, ये एक जागरूकता है जो जिन्होंने हमारे गुरुओं ने जो हिंद की चादर जिन्हें कहा जाता है श्री गुरु तेग बहादुर जी को, उनकी जो शहीदी हुई है उसकी एक जागरूकता के लिए ये यात्रा निकाली गई है। और बाकी जैसे आपको बताया गया है, यहाँ पे शोभा यात्रा जो है वो आसाम से निकलते हुई अनंतपुर साहब पंजाब में अन्य प्रांत से होती हुई वहाँ पे अनंतपुर साहब में समाप्ति होएगी, जो कि आज गुजरात में वापी में ये आई है। और गुजरात से सूरत, सूरत से अहमदाबाद, अहमदाबाद से राजस्थान, दिल्ली होते हुए पंजाब की ओर जाएगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।